آج ہمارے ذرائع ہمیں ایک ایسی شخصیت کی زندگی میں لے جا رہے ہیں جن کا سفر ناقابل یقین ہے۔ جی بالکل۔ ایک چرواہے سے شروعات اور پھر گورنر، عالم، قاری اور فاتح تک کا سفر۔ آج ہم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ اور ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا جذبہ تھا، کیا فیصلے تھے جنہوں نے ایک عام انسان کو تاریخ میں امر کر دیا۔ صحیح۔ ان ذرائع میں ہمیں صرف ایک کہانی نہیں ملتی، بلکہ کردار سازی کا ایک مکمل روڈ میپ ملتا ہے۔ تو پھر چلیں آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ مدینہ کے باہر ایک نوجوان چرواہا ہے، اپنی بکریاں چرا رہا ہے اور اسے خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، شہر میں تو ایک جشن کا سا سما تھا۔ ہر کوئی بے چین تھا کہ ان کا استقبال کریں۔ جی، لیکن حضرت عقبہ اس سب سے بہت دور تھے، کہیں وادیوں میں اپنی بکریوں کے ساتھ۔ تو جب ان تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنی بکریاں، اپنی روزی روٹی سب وہیں چھوڑ کر سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ذرا اس لمحے کو محسوس کریں، یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک پکار تھی۔ ایک شخص جو اپنی دنیا میں مگن ہے، اسے ایک ایسی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کی روح کو کھینچ لیتی ہے۔ واہ! اور تبدیلی کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اس پکار پر لبیک کہنا۔ بالکل۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پہلا مکالمہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، عقبہ بن عامر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سوال پوچھا جس میں دو راستے تھے۔ اچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، اعرابی یا ہجرت کی؟ اور حضرت عقبہ نے فوراً کہا، میں ہجرت کی بیعت کروں گا۔ یہ دو بیعتوں میں کیا فرق تھا؟ یہ کوئی معمولی انتخاب تو نہیں لگتا۔ نہیں، یہ بہت گہرا سوال تھا۔ دیکھیں، بیعت اعرابی کا مطلب تھا ایک بدو کی بیعت، یعنی آپ اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنے قبیلے، اپنی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن بیعت ہجرت، اس کا مطلب تھا اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنا ماضی، سب دین کے لیے قربان کر دینا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا۔ مطلب یہ کہ وہ صرف مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے؟ جی، وہ خود کو مکمل طور پر اس مشن کے لیے وقف کر دینا چاہتے تھے۔ تو وہ رات وہیں رکے اور اگلے دن اپنی بکریوں کے پاس واپس چلے گئے، لیکن اب وہ پہلے والے عقبہ نہیں تھے۔ بالکل نہیں، ان کا دل تو مدینہ میں ہی رہ گیا تھا۔ انہیں ہر لمحہ یہ احساس ستاتا تھا کہ ان کی بکریاں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے، اس سب سے بڑی نعمت سے دور کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑی کشمکش ہوگی۔ اور یہ وہ کشمکش ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے نا؟ دنیاوی ذمہ داریاں مقابلہ روحانی ترقی۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو اہم نقطہ ہے وہ ترجیحات کا ہے۔ حضرت عقبہ نے سمجھا کہ علم کا منبع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محدود وقت کے لیے ہے، جبکہ دنیاوی مال تو بعد میں بھی کمایا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ لمحے کی قدر اور موقع کی پہچان کا سبق ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے ان کی پوری زندگی کی بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے اپنی بکریاں ایک ساتھی کے حوالے کی اور کہا، تم ان کا خیال رکھو، میں جا رہا ہوں۔ اور سیدھے مسجد نبوی آ گئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ یہ کتنا بڑا قدم تھا، اپنی پوری معیشت کو صرف علم کی خاطر چھوڑ دینا۔ اس دور میں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ علم صرف کتابوں کا نام نہیں تھا، علم تھا استاد کی صحبت میں رہنا، ان کے ہر عمل کو دیکھنا، ان کے اخلاق کو اپنے اندر جذب کرنا۔ تو وہ علم کے اصل سرچشمے سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جی، وہ جانتے تھے کہ اصل دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس قربانی کا صلہ بھی انہیں فوراً ملا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا قرب حاصل ہوا کہ ذرائع میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جو آج کے دور میں سوچنا بھی ممکن ہے۔ وہ سفر والا واقعہ؟ جی، کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ دوستوں اور بھائیوں جیسا۔ وہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب حضرت عقبہ کی باری ختم ہوتی اور وہ پیدل چلنا شروع کرتے تو کچھ دیر بعد رسول اللہ خود فرماتے،
उकबा, क्या तुम सवार नहीं होगे? और हजरत उकबा अदब और मोहब्बत में मना करते होंगे। जी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरार करते तो वो सवार हो जाते, और फिर वो मंजर होता होगा कि अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं और उनका एक साथी ऊंट पर सवार है। ये सोचकर ही इंसान बेचैन हो जाता है। वो तो यकीनन फौरन नीचे उतर आते होंगे। बिल्कुल, ये वाकया सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये दिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों की कितनी कदर करते थे। ये ताल्लुकात की गहराई को जाहिर करता है। सही, वो सिर्फ एक मुअल्लिम नहीं थे, बल्कि एक शफीक रहनुमा थे जो अपने साथियों की दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करते थे। इसी तरह का एक और वाकया भी है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उकबा का हाथ पकड़कर उन्हें कुरान की आखिरी 2 सूरतें सिखाईं। जी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। और सिर्फ सिखाएं नहीं, बल्कि उनकी अहमियत भी बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जैसी पनाह मांगने वाली कोई और सूरतें नाजिल नहीं हुई। और फिर ताकीद की कि उन्हें हर नमाज के बाद और सोते वक्त पढ़ा करें। ये कितना ज़ाती और अमली सबक है। बिल्कुल, ये एक रूहानी टूल किट देने जैसा है। जी, एक ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर हिफाजत और बरकत का जरिया बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ऐसे ही अमली नुस्खे अता करते थे जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती तरबियत का असर उनकी शख्सियत पर बहुत गहरा पड़ा होगा। ये इल्म सिर्फ उनकी ज़ात तक तो महदूद नहीं रहा होगा। यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने इस इल्म को न सिर्फ हासिल किया, बल्कि उसे आगे बढ़ाया और उसमें कमाल हासिल किया। वो सिर्फ एक शागिर्द नहीं रहे, बल्कि खुद एक उस्ताद बन गए। अच्छा। वो अपने दौर के सबसे बड़े कार्यों में शुमार होने लगे, और उनकी तिलावत में ऐसा दर्द और असर था कि सुनने वालों के दिल पिघल जाते थे। वराए में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या भी मिलता है। उन्होंने एक बार हजरत उकबा से कुरान सुनने की फरमाइश की। जी, और जब उन्होंने तिलावत शुरू की तो हजरत उमर, जो खुद इतने मजबूत आसाब के मालिक थे, वो फूट फूट कर रोने लगे। ये तो उनकी तिलावत के खलूस और तासीर का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर कहानी एक नया मोड़ लेती है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन है। ये गोशानशीन आलिम, जिसकी तिलावत से पत्थर दिल भी मोम हो जाएं, वही शख्स हमें मैदान जंग में एक बहादुर सिपाही के रूप में नजर आता है। जी, उन्होंने दिमिश्क की फतह में भी हिस्सा लिया। ये शख्सियत के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू नहीं लगते? ये एक बेहतरीन सवाल है। हमारे दौर में हम अक्सर दीनदारी को दुनिया से लातल्लुकी समझ लेते हैं। सही। लेकिन इस दौर की अजीम शख्सियात हमें बताती हैं कि असल कमाल तवाजुन में है। इस्लाम में रूहानियत का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अपने उसूलों पर कायम रहना है। तो उनके लिए मस्जिद में इबादत करना और मैदान जंग में बहादुरी दिखाना, दोनों एक ही ईमान के 2 मुख्तलिफ मजहर थे। और फिर उनका किरदार एक और सतह पर पहुंच जाता है। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी सलाहियतों को पहचानते हैं और उन्हें मिस्र जैसे अहम सूबे का गवर्नर मुकर्रर कर देते हैं। एक चरवाहा, फिर तालिब इल्म, फिर कारी और सिपाही, और अब एक सल्तनत के सबसे बड़े सूबों में से एक का हाकिम। ये तब्दीली गैर मामूली है। और वो 3 साल तक इस मनसब पर फाइज रहे। तो क्या ज़राए में इस बारे में कुछ तफसील मिलती है कि एक आलिम और कारी ने इंतजामिया उमूर कैसे चलाए? उन्हें कोई चैलेंजेस आए? ये बहुत दिलचस्प पहलू है। ज़राए बताते हैं कि उनकी गवर्नरी का अंदाज भी उनकी शख्सियत का आईनादार था। वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं थे। अच्छा। उन्होंने फौजी मामलात को मजबूत किया, सरहदों की हिफाजत की, लेकिन उनका असल जोर अवाम की रूहानी और इल्मी तरबियत पर था। उन्होंने मिस्र में कुरान और हदीस की तालीम के बाकायदा मराकिज कायम किए। वाह, यानी वो एक तरह से मदीना के उस तालीमी माहौल को जिससे वो खुद फैज़याब हुए थे। बिल्कुल, इसी को एक पूरे सूबे की सतह पर नाफिज करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है। वो जानते थे कि अगर लोगों का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हो जाए तो बाकी तमाम मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। तो उनकी गवर्नरी सिर्फ इक्तदार नहीं, बल्कि एक तालीमी और रूहानी मिशन थी। जी बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है कि उनके इब्तदाई फैसलों ने उनकी पूरी जिंदगी की सिमत मुतय्यन कर दी थी। और इतनी बड़े मनसब पर पहुंचने के बाद भी उनकी जिंदगी में वही सादगी कायम रही होगी। जी, अब उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। जिस तरह उनकी जिंदगी सबक आमोज थी, इसी तरह उनकी वफात और वसीयत भी हिकमत से भरपूर है।
वसीयतें तो अक्सर इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ होती हैं, है ना? बिल्कुल, उससे पता चलता है कि उस शख्स के नजदीक सबसे अहम क्या था। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और 3 नसीहतें की। पहली ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी हदीस मंसूब ना करना जिस पर तुम्हें पूरा यकीन ना हो। ये इल्म के मामले में ये कितनी बड़ी एहतियात है। ये उनकी इल्मी दियानत की अलामत है। सही। वो जानते थे कि गलत मालूमात या सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाना दीन की बुनियादों को कमजोर करने के मुतरादिफ है। ये आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। दूसरी वसीयत थी कि फटे पुराने कपड़ों में रह लेना, लेकिन कभी किसी से कर्ज ना लेना। ये खुददारी और इज्जत नफ्स का कितना बड़ा दर्ज है। ये सिर्फ मालियाती नसीहत नहीं, ये नफ्सियाती नसीहत है। कर्ज इंसान की आज़ादी और खुददारी को मजरूह करता है। और फिर तीसरी वसीयत, जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। जी? उन्होंने कहा, शेरो शायरी में ज्यादा मशगूल ना होना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल कुरान से गाफिल हो जाएं। क्या वो शायरी के खिलाफ थे? नहीं, वो फन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो खुल्फशार यानी डिस्ट्रैक्शन के खतरे से आगाह कर रही थी। अच्छा, उनके नजदीक जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह कुरान से ताल्लुक था। वो ये कह रही थीं कि कोई भी चीज, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत और दिलकश क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें तुम्हारे असल मकसद यानी अल्लाह के कलाम से दूर कर दे तो वो काबिल तर्क है। मतलब तरजीहात का तयन कि आप अपनी जिंदगी का मरकज किस चीज को बनाते हैं। बिल्कुल यही बात है। तो ये थी हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी। एक चरवाहे का अपनी बकरियां छोड़कर इल्म की तरफ आना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर खुद को संवारना, और फिर उसी इल्म और किरदार की बुनियाद पर एक सिपाही, फातेह और गवर्नर के तौर पर तारीख पर अपने नक्श छोड़ जाना। उनकी जिंदगी सादगी, लगन और इल्म की ताकत की एक लाजवाल मिसाल है। और जाते जाते सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। हजरत उक़बा ने अपनी वसीयत में शेरो शायरी से बचने का कहा, क्योंकि वो कुरान से गाफिल कर सकती थीं। जी। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और अनगिनत डिजिटल तफरीहात हर लम्हा हमारी तवज्जो खींच रही हैं, हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी की वो शायरी क्या है? जी, वो क्या चीज़ है जो हमें गहरे इल्म, रूहानी सुकून और जिंदगी के हकीकी मकसद से दूर कर रही है।